how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is Introduction to Python. Let's get started. Name any 4 programming languages known to you and also name their developers. Programming language developers name. जो आपको कोई भी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम बताने हैं और साथ ही साथ उनके डेवलपर्स के नाम भी आपको बताने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. As you know that a computer needs step-by-step instructions to complete a task. These instructions are called a computer program when they are written in some programming language. But before they are written in any programming language, these steps are written in simple English language. These are called algorithms. These instructions are written in a language which the computer understands, and this language is known as programming language. There are many programming languages like Scratch, Basic, C++, Visual Basic, etc. In this chapter, you will learn a new programming language called Python. बच्चों आपको पता ही है कि कंप्यूटर को अगर आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं तो आपको स्टेप वाइज स्टेप्स देने होते हैं. ठीक है, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है. ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसे आप पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है और इन्हें हम एल्गोरिथम भी कहते हैं. ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये किसी भी लैंग्वेज में लिखी होती है, मतलब किसी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है जिसे आपका कंप्यूटर जो है ईजिली समझ पाता है. ठीक है, इन्हीं को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. इस चैप्टर में हम एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पाइथन कहते हैं. Python is a simple yet powerful programming language which allows the user to write, run and debug the code for computer programs. It was developed by Guido van Rossum during 1985-1990 while working at CWI, Centrum Wiskunde and Informatica, a national research institute for mathematics and computer science in the Netherlands. Python is very popular as it can be used to develop games, build a website, program robots, develop artificial intelligence applications and perform scientific कंप्यूटेशन. तो बच्चों पाइथन जो है ये काफ़ी सिंपल लेकिन काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है जिसे यूज़र जो होते हैं इजीली राइट कर पाते हैं, इसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, डिबग कर पाते हैं और इसे लिख भी पाते हैं. ठीक है, पाइथन जो है ये काफ़ी पॉपुलर भी है क्योंकि इससे आपके जो गेम्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कोई रोबोट को प्रोग्राम किया जाता है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया जाता है और साथ ही साथ आपके साइंटिफिक कंपटीशन को भी परफॉर्म किया जाता है और इसे डेवलप किया गया था गाइडो वैन रोसम के द्वारा. फीचर्स ऑफ पाइथन दैट मेक इट अ वेरी popular language are Python is interpreted. Python is processed at runtime by the interpreter. You do not need to compile your program before executing it. Python is interactive. You can also Python prompt and interact with the interpreter direct. Write your programs. Python is object oriented. Python supports object oriented style. Python is a beginner's language. Python is a great language for the beginner programmers and supports the development of a wide range of applications from simple processing to www browsers to game. Easy to learn. Python has few keywords, simple structure and a clearly defined syntax allows the students to pick up the language quickly. Easy to read. Python code is more clearly defined and visible to the eyes. Portable. Python can run on a wide variety of hardware platforms and has the same interface on all platforms. Databases. Python provides interface to all major commercial databases. Scalable. Python provides a better structure and support for large programs that shell scripting. अब बच्चों पाइथन के बारे में हम जान लिया, अब हम पाइथन के फीचर के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. सबसे पहले पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड है. ठीक है, पाइथन जो है ये किसी भी टाइम प्रोसेस की जाती है और ये इंटरप्रेटर्स के द्वारा किसी भी टाइम पे रन इसे किया जा सकता है. ठीक है, इसके लिए आपको प्रोग्राम को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है.
पाइथन जो होती है इंटरैक्टिव लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने प्रोग्राम्स को क्या कर सकें, डायरेक्टली राइट कर सकें। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। पाइथन जो है बिगनर्स लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि जो बेसिक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं वो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी लैंग्वेज मानी जाती है किसी को भी सीखने के लिए। ईजी टू लर्न भी है, ठीक है। आप इसके कीवर्ड्स, सिंपल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ईजीली समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो भी क्लियरली डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो इस लैंग्वेज को जल्दी से पिकअप कर लें। ईजी टू रीड भी है, ठीक है, आप इसे ईजिली पढ़ सकते हो। पोर्टेबल भी है, ठीक है, आप इसे वैरायटी ऑफ हार्डवेयर्स में रन कर सकते हो, ठीक है। और डेटाबेसेस, मतलब इसमें जो मेजर डेटाबेसेस हैं उन्हें आपस में आप लिंक कर सकते हैं। स्केलेबल भी है, ठीक है, ये आपको बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है लार्ज प्रोग्राम्स के लिए। नाउ मोर टू नो, Python is used by many companies like Google, Dropbox, YouTube, Yahoo for their various applications. ठीक है बच्चों, applications of Python programming. Python is a popular language. It can be used to do the following: build a website, develop games, program robots, perform scientific computation, develop artificial intelligence based application. अब बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, ठीक है। आप इन्हें किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी गेम को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन आप रोबोट्स को प्रोग्राम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी साइंटिफिक कंपटीशन भी आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर सकते हैं जो कि एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है। नोट, Python is a case sensitive language. For example, print and print are not same. ठीक है, यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि Python जो है एक case sensitive language है। Installing Python. You can install Python from the Python website http://www.python.org/. Download the latest version for Windows. Once your file is downloaded, double-click the downloaded installer software. Click on the Run button in the dialog box and the installation process starts. Follow the instruction until you see the highlighted Finish button. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, आपको उस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से इसकी फ़ाइल को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको रन बटन पे क्लिक करना है, आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको नहीं छेड़ना, आप उसको रहने देना, ये आपका होता रहेगा धीरे धीरे। फिर आपको जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फिनिश बटन नज़र आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। वर्किंग इन पाइथन शेल. After installing Python, you can use the Python shell in one of the following two modes: interactive mode, second script mode. Let us learn about both. तो बच्चों जब आप Python को इंस्टॉल कर लेते हो तो Python शेल को आप यूज़ कर सकते हैं इन दोनों मोड में से किसी भी एक में। पहला है आपका इंटरैक्टिव मोड एंड दूसरा है आपका स्क्रिप्ट मोड। इनके बारे में हम आगे जान लेते हैं। इंटरैक्टिव मोड. Interactive mode is a command line shell which gives immediate result for each command. In interactive mode, we type one command at a time. Python executes the given command and gives the output. Follow these steps to start Python and work in interactive mode. Step 1. Click on Start button. Step 2. Scroll down the list of programs and click on Python 3.10 folder. Step 3. Click on Idle. Python 3.10 64-bit. The main idle window appears. Idle stands for Integrated Development Environment. It is a code editor which helps you to write and execute Python programs in the editor itself. तो बच्चों यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड के बारे में बताया गया है। इंटरैक्टिव मोड जो है एक कमांड लाइन शेल होती है जो कि आपको इमीडिएट रिजल्ट देती है ईच कमांड के लिए। इंटरैक्टिव मोड में हम एक कमांड को एक ही टाइम पर क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। और पाइथन जो है वो उस
कमांड को एग्जीक्यूट करता है और फिर हमें वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए, हम समझ लेते हैं इन स्टेप को कि कैसे हमें पाइथन को स्टार्ट करना है और इंटरैक्टिव मोड में काम करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पाइथन 3.10 को। उसके बाद आप आइडल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आइडल जो होता है ये आपका मेन विंडो माना जाता है। आइडल जो है वो स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को, और ये एक कोड एडिटर होता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ आइडल पाइथन। टाइटल बार, this is the area that displays the name of the application. Menu bar, it has various menus such as file, edit, shell, debug, options, window and help. Shell prompt, the shell prompt is denoted by greater than. The shell prompt all allows you to enter commands directly into Python and get an instant output by pressing the enter key. Type the commands at the prompt and you will immediately get the results. Status bar, it displays the current status of your cursor control on the window. तो बच्चों हम आइडल पाइथन के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है टाइटल बार, जो आपके एप्लीकेशन के नेम को दर्शाता है। देन आता है आपका मेन्यू बार, इसमें आपके फाइल, एडिट, शेल, डिबग ऑप्शन जैसी कमांड्स या मेन्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शेल प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन जो आपका सिंबल होता है इससे ये डिनोट करता है, और शेल जो है ये प्रॉम्प्ट करता है आपको आपकी कमांड्स को एंटर करने के लिए डायरेक्ट इनटू पाइथन। ठीक है, जिसमें आपको इंस्टेंट आउटपुट भी मिलता है एंटर की को प्रेस करके। इसके बाद आता है स्टेटस बार, ये आपके करंट स्टेटस को डिस्प्ले करता है जो कि आपके कर्सर कंट्रोल का होता है विंडो पे। टेक टिप, इन आइडल यू कैन प्रेस Alt+P टू रिपीट द प्रीवियस कमांड। ठीक है बच्चों, आप इसमें कीबोर्ड पे भी Alt+P प्रेस करके अपनी प्रीवियस कमांड को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। नाउ वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड। In the interactive mode of Python, the instructions are executed line by line, giving the output. In this mode, the commands are typed next to the Python shell prompt bracket greater than. Let us enter some commands at the shell prompt and see their output instantly simply by pressing the enter key. You will observe that shell prompt can work as a calculator for you. ठीक है, हम इंटरैक्टिव मोड में कैसे काम करते हैं ये जान लेते हैं। इंटरैक्टिव मोड जो होता है यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि आपको आउटपुट जो है वो मिल सके। इस मोड में आपके कमांड्स को टाइप किया जाता है पाइथन शेल के नेक्स्ट में। ठीक है, और ये आपके ब्रैकेट ग्रेटर देन के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम कुछ कमांड्स को शेल प्रॉम्प्ट में एंटर करते हैं, और साथ ही साथ हमें उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो इंस्टेंटली मिल जाता है जब भी हम एंटर की को प्रेस करते हैं। ठीक है, नाउ स्क्रिप्ट मोड, you cannot save the commands in the interactive mode and you can execute only one command at a time. So if you want to reuse some commands or execute a group of commands, you need to save it in the form of a file. You can do this in the script mode. You can save a file in Python with .py extension. Let us now learn how to use script mode. Writing a program. Follow these steps to write a program. Step 1, open the Python idle window. Step 2, click on the file menu. A drop down menu appears. Step 3, click on the new file option. A new editor window with a blank file will appear on the screen. Type the program code in Python window. Step 4, to save the program, click on the file menu. Save and save the file with .py एक्सटेंशन। अब बच्चों हम स्क्रिप्ट मोड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी कमांड को
सेव नहीं कर सकते इंटरैक्टिव मोड में, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ओनली वन कमांड एट अ टाइम, ठीक है। अगर आप इसे रीयूज़ करना चाहते हैं, इस कमांड को आप रीयूज़ करना चाहते हैं और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी ग्रुप ऑफ कमांड को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें फॉर्म ऑफ फाइल के रूप में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कब करेंगे, ये आप स्क्रिप्ट मोड पे करेंगे, ठीक है। आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं पाइथन में विद .py एक्सटेंशन। अब हम जान लेते हैं कैसे हम इसे सीखते हैं, किसके थ्रू, स्क्रिप्ट मोड के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम को हम राइट करना सीख लेंगे। यहाँ पे आपको स्टेप 1 दिया गया है, आपको पाइथन आइडल विंडो को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक कर लेना है, आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू एडिटर विंडो विद अ ब्लैंक फाइल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। आपको वहाँ पे प्रोग्राम कोड को टाइप करना है, ठीक है, इन पाइथन विंडो। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव पे जाएंगे और आपकी फाइल जो है वो .py एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। नोट, by default the Python scripts are saved in the Python installation folder। by default बच्चों से बताया गया है कि आपकी जो Python स्क्रिप्ट होती है ये Python installation folder में ही सेव होती है। Running a Python program, after you have written and saved a script, you have to run the program। Follow these steps to run a Python program। Step 1, click on Run in the menu bar। Step 2, click on Run module option or press F5 key। The program will execute and the output will be shown in the cell window। अब बच्चों हम किसी पाइथन प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। जब आप आपकी स्क्रिप्ट को लिख लेते हो तो आपको उस स्क्रिप्ट को क्या करना होता है, सेव कर लेना होता है। जब आप उस स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हो तो आप उसे क्या करते हो, दोबारा से रन करते हो। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम रन करेंगे। सबसे पहले आप मेन्यू बार में रन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पे, या फिर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे F5 की को। आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, साथ ही साथ वो आपको आउटपुट देगा इन द शेल विंडो। मोर टू नो, पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। Data types and variables. You know that every child in your class has a name which is his/her identity. Similarly, when we are writing a program, we need to save some values which we can use later. These are stored in the memory in fixed locations which can be addressed by some name. This is called a variable. Variables are used to store data in the memory. The data can be numbers, text, and or objects. In Python, a data type represents the type of data stored in a variable. Data types define the way to store values in the memory. Python has various standard data type based on the type of value. For example, a student's ID number is stored as a numeric value, whereas the address is stored as an alphanumeric character. तो बच्चों हम जान लेते हैं डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के बारे में। आपको पता ही है कि आपकी क्लास में हर एक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, उसका अपना एक क्या होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, उसके अपना नाम होता है, ठीक है, अपना रोल नंबर होता है। इसी तरह से जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ को सेव करना होता है ताकि हम इन्हें बाद में क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमें फिक्स लोकेशन में सेव करके रखना पड़ता है और इन्हें किसी ना किसी नाम से हमें सेव करना पड़ता है, ठीक है। इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं और वेरिएबल्स को हम मेमोरी में स्टोर, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये नंबर में भी हो सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं और सिंबल्स में भी हो सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकते हैं। पाइथन में जो आपके डेटा टाइप होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी भी डेटा टाइप ऑफ डेटा को जो कि वेरिएबल्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं। डेटा टाइप्स जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि कैसे आपकी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। पाइथन में वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो कि उनकी टाइप ऑफ वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बच्चों, स्टूडेंट की जो आईडी नंबर होता है ये न्यूमेरिक में सेव किया जाता है और जो उनका एड्रेस होता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में सेव किया जाता है, क्योंकि एड्रेस में आपको पता है उसमें नंबर्स भी आते हैं और उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन।
There are different data types in Python. We will only be learning about a few in this class. Numeric. There are three numeric data types: integer, float, and complex. Integer. Integers are the whole numbers consisting of plus and minus sign without decimal points, such as 1000, -88, etc. Example: greater than a equal to 24 hash. This is a positive integer value. Greater than b equal to -60 hash. This is a negative integer value. Float. Float data type represent floating point numbers which contain decimal point. For example, 0.5, -4.567, 0.001, etc. Example: greater than a equal to 17.5 hash. This is a float value. Greater than b equal to 12 hash. This is an integer value. String. This is an ordered sequence of letters or characters. It is enclosed in single quotes, bracket, single quote, or double bracket, double quote. The quotes tell the computer where the string constant begins and ends. A string can contain any characters or sign including space. Example: greater than name equal to inverted comma sangam, inverted comma hash. Name stores a string. Greater than name equal to single quote sangam. तो बच्चों हम जान लेते हैं जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। सबसे पहले होते हैं आपके न्यूमेरिक। ये आपके न्यूमेरिक डेटा जैसे कि इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स को ही कंटेन करते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ये आपके होल नंबर्स होते हैं जिसमें आपके प्लस एंड माइनस आते हैं। इसमें आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप्स जो होते हैं ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके बताया गया कि फ्लोट कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है ये एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है आपके लेटर और कैरेक्टर्स का। ठीक है, ये एनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के साथ। ये कोट्स कंप्यूटर को बताते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो कैसे बिगिन होगा, मतलब कैसे स्टार्ट होगा और कैसे वो एंड होगा। एक स्ट्रिंग जो होते हैं ये आपके एनी कैरेक्टर्स और साइन को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इसमें स्पेस भी आप डाल सकते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके भी बताया गया है। मोर टू नो टाइप ब्रैकेट इज यूज्ड to check the data type of value. For example, type bracket 23 will return a value less than type integer greater than, meaning 23 is an integer. बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि आप ब्रैकेट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा की जो टाइप होती है उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए। ठीक है, नाउ असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स। Values are assigned to variables using the assignment operator bracket equal to. For example, the statement x equal to 25 assigns the value 25 to the variable x. Observe the following codes to understand the use of the assignment operators. A equal to 10 hash value 10 is assigned to the integer variable a. C equal to a plus b hash, the numbers are added and the value is assigned to the variable c. AB equal to inverted comma hello hash value hello is assigned to string variable AB. Rules for naming variables. There are certain rules in Python that have to be followed to form valid variable names. The rules for valid identifier variable names are: a variable name must start with an alphabet, capital or small, or an underscore. A variable name can consist of letters, digits and underscore. No other character is allowed. A keyword cannot be used as a variable name. A variable name can be of any length. Normally they are written in lowercase letters. Thus, color underscore 12 underscore number stu underscore id class 2 are some valid variable names. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि पाइथन में हम वैल्यूज़ को कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ जो होती है किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के साथ।
यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि कैसे आप किसी भी स्टेटमेंट में इक्वल टू को यूज़ करते हैं और कैसे आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू जो है असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आपको दिखाई गई है 25, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बाकी के आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं, आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैसे हम नेमिंग वेरिएबल्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। पाइथन में आपको कुछ रूल्स जो है फॉलो करने होते हैं कि कैसे आप वैलिड वेरिएबल्स की फॉर्म क्रिएट करते हो। ये जो रूल्स होते हैं ये वैलिड आइडेंटिफायर के लिए होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका जो वेरिएबल नेम है ये स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स के साथ ही, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, ठीक है। और चाहे तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर का। वेरिएबल का जो नेम होता है ये आपके लेटर्स के साथ कंसिस्ट होना चाहिए, डिजिट्स के साथ एंड अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स आपको अलाउ ही नहीं करेगा यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, एक कीवर्ड जो है ये इसमें आप वेरिएबल नेम को यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम जो है ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है लेंथ में, ठीक है। नॉर्मली ये लोअर केस लेटर्स के साथ ही लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया गया है। नाउ थिंक बॉक्स, टीचर #id इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम, कैन यू एक्सप्लेन वाई। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आईडी हमें दी गई है ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर तो लिखा ही नहीं है और ना ही न्यूमेरिक्स को यहाँ पे लिखा गया है। More to know, keywords cannot be used as variable names as these have a special meaning for the Python interpreter. For example, print, if, then, etc. are some keywords used in Python. तो बच्चों कीवर्ड्स जो होते हैं ये आप वेरिएबल नेम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन इंटरप्रेटर में। Operators are the special symbols that carry out arithmetic and logic computation. The values operated by the operators are called operands. There are many types of operators in Python like arithmetic, relational, logical, assignments, etc. In this chapter, we will learn about arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations. Operator, operation, description, example, try in lab. Plus, addition adds the two numeric values on either side of the operator. This operator can also be used to concatenate two strings on either side of the operator. Greater than A equal to 5, greater than B equal to 6, greater than A plus B 11, greater than str1 equal to inverted comma hello, greater than str2 equal to inverted comma India, greater than str1 plus str2 hello India. Minus subtraction subtracts the operand on the right from the operand on the left. Greater than A equal to 5, greater than B equal to 6, greater than A minus B minus 1. Slash division divides the operand on the left by the operand on the right and return the quotient. Greater than A equal to 8, greater than B equal to 4, greater than A oblique B equal to 2. Star multiplication multiplies the two values on both sides of the operator. It is also used for multiplication in strings. Greater than A equal to 5, greater than B equal to 6, greater than A multiply B 30. Greater than Python star 3 Python. Percentage modulus divides the operand on the left by the operand on the right and returns the remainder. Greater than A equal to 13, greater than B equal to 5, greater than A percentage B 3. Double slash floor division divides the operand on the left by the operand on the right and returns the quotient by removing the decimal part. Greater than A equal to 13, greater than B equal to 4, greater than A double slash B 3.
greater than b double slash a 0. Double star exponent performs exponential power calculation on operands, that is raise the operand on the left to the power of the operand on the right. Greater than a equal to 3, greater than b equal to 4, greater than a double star b. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि किसी ना किसी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल कंप्यूटेशन को कैरी आउट कर रहे होते हैं. ठीक है, ये जो वैल्यूज़ होती है ये ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है जिन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी टाइप के ऑपरेटर्स जो होते हैं ये पाइथन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें हम पहले जानेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके मैथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और यहाँ पे आपको टेबल देके समझाया गया है कि कैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट को इसमें परफॉर्म करते हो. इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन. Python provides two commonly used functions, input bracket and print bracket for input and output. The input function, Python input bracket function is used to get input from the user. It prompts for the user input and reads a line. After reading data, it converts it into a string. Input bracket function always returns string value. String variable underscore name equal to input bracket inverted comma string. Here variable underscore name means any name where input bracket function assigns the value into it. Example, program to print any string after getting it from user. Example 2, program to put the sum of two numbers. As discussed earlier, the input bracket function converts the entered value into the string, which could only be used to print using print bracket function but could not use for calculation purpose. Let us understand it with an example. When you run the score code, the sum of 23 and 43 shows 2343 as the given value gets converted into string using input bracket function, and the plus operator concatenates, joins both values. Now to show calculation between these values, you can need to convert the entered string values into integer using int bracket function. अब बच्चों हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं. पाइथन जो होता है ये दो कॉमनली यूज फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला होता है आपका इनपुट एंड दूसरा होता है आपका प्रिंट. ठीक है, ये आपके इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं. जो आपका इनपुट फंक्शन होता है ये आपका यूज़ किया जाता है यूज़र के थ्रू, ताकि इनपुट जो है वो आप क्या कर सको अपने कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल सको. ये प्रॉम्प्ट करता है यूज़र्स के लिए ताकि आपकी लाइन को क्या किया जा सके, रीड किया जा सके. ठीक है, जब आप डेटा रीड कर लेते हो तो ये कन्वर्ट करता है किसमें, स्ट्रिंग्स में. ठीक है, इनपुट फंक्शन जो होता है ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा क्या करता है, रिटर्न करता है. ठीक है, इस तरह से इसका सिंटेक्स जो है ये आपको दिया गया है, जहाँ पे अंडरस्कोर नेम जो है इसका मतलब होता है एनी नेम वेयर इनपुट फंक्शन असाइन द वैल्यू इनटू इट. ठीक है, इसके थ्रू आप कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हो. यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है. ठीक है, तो बच्चों ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आपका जो इनपुट फंक्शन होता है ये आपकी एंटर्ड वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए नहीं होता. अगर आप इसके साथ कैलकुलेशन करना चाहोगे तो ये आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा. Using int bracket to work with the values provided by the user, Python provides the int bracket function. When you use int bracket function, the values are converted to integers and are then added as shown below. In the above program, when you run the source code, the sum of 23 and 43 shows 66 as the given value converts into integer using int bracket function. So plus operator performs the addition between entered value. तो बच्चों हम int कमांड के बारे में जान लेते हैं, इसे हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, जब भी हम किसी भी वैल्यू के साथ काम करते हैं जो हमें यूजर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो
पाइथन जो है ये हमें int फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इन्हें कैलकुलेट करके हम एक रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर आपने दो वैल्यूज़ देखी थी 23 एंड 43, तो इनको क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया और आपके सामने रिजल्ट 66 जो है वो ले आया। मोर टू नो, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट स्ट्रिंग्स इनटू डेसिमल वैल्यू यूजिंग फ्लोट फंक्शन। बच्चों आप फ्लोट फंक्शन को यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रिंट ब्रैकेट फंक्शन, the print statement is used to display the output of any command on the screen. It can be used to print the specified messages. Example, greater than print bracket inverted comma hello world will display hello world. You can specify multiple values with the print statement. When you use a comma with a print statement, the values will be printed with a space in between. In Python strings, the \/ is an escape character. You can use print statement with multiple escape sequence. For example, \t means a tab space and \n means न्यू लाइन कैरेक्टर। तो बच्चों हम प्रिंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है ये आपकी स्क्रीन पे किसी भी कमांड का जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये स्पेसिफाइड मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके बताया गया है। इसके साथ साथ आप स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें कॉमा जो सिंबल होता है वो भी स्टेटमेंट के साथ, किसी भी अगर आप स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको कॉमा ज़रूर लगाना होगा। पाइथन स्ट्रिंग में आप \/ के साथ किसी भी कैरेक्टर को एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रिंट स्टेटमेंट को मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। More to know, an escape sequence is a sequence of characters with special meaning when used inside a string or a character. एक एस्केप सीक्वेंस जो होता है ये आपका सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, जिसमें आपके स्पेशल मीनिंग के साथ ये आते हैं और जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को इनसाइड अ कैरेक्टर यूज़ करते हैं। कमेंट्स इन पाइथन, कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल statements in a program. Comments are used to explain Python code and make it more readable. Python interpreter ignores the text written in the comment. Python supports the following comments in a program. Single line comment. Single line comment must start with the symbol #. Example. Multiple line comment. To add a multiple line comment, Python uses triple quotes or this is an example of multi-line comments. Example, triple quote, this is an example of multi-line comments. तो बच्चों हम जान लेते हैं पाइथन में आप कमेंट्स कैसे राइट करते हो। कमेंट जो होते हैं ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के। कमेंट जो होते हैं ये आपके पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये इसे और अच्छे से रीडेबल बनाते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर जो होते हैं ये किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं जो कि आपके कमेंट में लिखा हुआ होता है, ठीक है। साथ ही साथ पाइथन जो है ये फॉलोइंग कमेंट्स को ही सपोर्ट करता है किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि आपके सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं वो सिंबल # के साथ ही स्टार्ट होने चाहिए। मल्टीपल लाइन कमेंट जो होते हैं ये आपके ट्रिपल कोट के साथ या फिर डबल कोट के साथ ही लगे हुए होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया है मल्टी लाइन कमेंट्स का। तो बच्चों आई होप आपको पाइथन का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।